آغاز میں آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے نیب قانون میں حالیہ ترامیم کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت 1 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کیا خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون میں ترمیم کی جا سکتی ہے؟ ملک میں اس وقت غیر معمولی صورتحال ہے۔ ایک سیاسی جماعت پارلیمنٹ سے بائیکاٹ کر چکی ہے۔ ہم نے بھی کہا آپ پارلیمنٹ جائیں، ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تاثر نہیں جانا چاہیے، عدلیہ کو مداخلت کرنے سے لطف آتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا باہر سیاسی حالات تبدیل ہو جائیں تو ان کو دیکھ کر ہمیں خود کو بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ عدالت نے فریقین کو تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل وفاقی حکومت مخدوم علی خان نے اپنے دلائل میں کہا کہ نیب قانون میں 90 روز کا ریمانڈ تھا۔ عدم توازن کو درست کرنے کے لیے پارلیمان نے قانون سازی کی۔ ملزم الزامات سے بری ہو بھی جائے تب بھی اہل خانہ تاحیات اس داغ کو سہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی نیب قانون میں موجود سکم پر آبزرویشنز موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہم نے خود نیب قانون میں موجود سکم کے بارے میں آبزرویشنز دیں۔ 90 روز کے ریمانڈ کو کسی صورت درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فوجداری نظام میں تو 14 دن کے ریمانڈ کا ذکر ہے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے۔ سزا شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ پورا نیب قانون ہی ختم کر دے تو کیا لوگ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں؟ وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ اپنا کام نہ کر رہا ہو تو عدالت موجود ہے، اگر پارلیمنٹ کام کر رہا ہے تو عدلیہ کو مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ بحث کا اصل فورم پارلیمنٹ ہے۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات کا معاملہ ایف آئی اے نے عمران خان کا موقف مسترد کر دیا۔ ایف آئی اے نے سوالات کے جواب کے لیے دوبارہ نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق 3 دفعہ نوٹس کرنے کے بعد وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مزید 5 کمپنیوں کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ کمپنیوں کا الیکشن کمیشن اور ایف بی آر میں جمع کرائے گئے گوشواروں میں ذکر نہیں۔ یہ کمپنیاں امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، بیلجیم اور کینیڈا میں ہیں۔ ان 5 کمپنیوں میں سے کچھ بند ہیں، کچھ اب بھی فعال ہیں۔ بند ہونے والی کمپنیوں کی آڈٹ رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ اور اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو پیر تک پیمز اسپتال میں رکھنے اور دوبارہ میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے دوبارہ 8 دن کے جسمانی ریمانڈ کو پیر تک معطل کر دیا۔ جج نے ریمارکس دیے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ شہباز گل کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے شہباز گل کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے، ان کی صحت ٹھیک نہیں، پھیپھڑوں سے متعلق 50% رپورٹ آئی ہے جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل سے متعلق بیان جاری کر دیا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ نے شہباز شبیر کو طبی طور پر صحت مند قرار دیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق ملزم شہباز شبیر ہیلے بہانوں سے خود کو بیمار ظاہر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس تمام تر امور قانون کے مطابق مکمل کر رہی ہے۔ بیماری کا بہانہ کر کے ملزم شہباز شبیر تفتیش میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہیلے بہانوں سے قانون کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہباز گل پر تشدد کے خلاف طبی معائنے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ غیر جانبدار ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی دائر درخواست پر ڈاکٹر بابر امان عدالت میں پیش ہوئے۔ بابر امان نے کہا کہ ہم غیر جانبدار ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ چاہتے ہیں۔ بابر امان نے گزشتہ روز شہباز گل کیس پر ہائی کورٹ کا فیصلہ عدالت کو پڑھ کر سنایا۔ بولے ڈاکٹرز جو میڈیکل بورڈ میں ہیں ان کی کچھ بیماریوں میں ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کوئی بھی ہو مگر ایک پرائیویٹ میڈیکل بورڈ بنایا جائے۔ جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ ہم اس معاملے کو سیکرٹری داخلہ پر چھوڑ دیں تو بہتر نہیں ہوگا، جس پر بابر امان نے کہا کہ غیر جانبدار پرائیویٹ میڈیکل بورڈ چاہتے ہیں، سرکاری ڈاکٹرز کا نہیں۔ عدالت شہباز گل کی زندگی، بنیادی حقوق تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ موجودہ میڈیکل بورڈ کیسے تشکیل دیا گیا۔ بابر امان نے بتایا کہ موجودہ میڈیکل بورڈ خاتون جج کی ہدایت پر بنایا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے اس پر آرڈر پاس کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ڈاکٹر شہباز گل کی سرکاری میڈیکل رپورٹس اور فائنڈنگ ماننے سے انکار، آزاد میڈیکل بورڈ بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کہتے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں تشدد ہوا ہے۔ آئی جی نے تشدد سے متعلق اشتہار جاری کر دیا جس کی مذمت کرتے ہیں۔
شہباز گل کے معاملے پر سینٹ میں دوسرے روز بھی گرما گرمی. شہزاد وسیم نے حکومت کو ظالم قرار دیا. کہا عدالت میں پیش کرتے ہوئے ظالموں نے شہباز گل کا ماسک چھین لیا. میڈیکل رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ حالات کیا ہیں. یہ ٹرائل کریں لیکن ٹارچر کے خلاف سب کو اکٹھا ہونا ہوگا. آج صبح جس طریقے سے شہباز گل کو ہسپتال سے اٹھا کر جو اپنی سانسوں کے لیے لڑ رہا ہے, آکسیجن پر ہے, اس کو اٹھا کر ڈالے میں ڈالا گیا, وہاں سے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں چھین کر اس کا ماسک اتارا گیا. وہ دہائیاں دیتا رہا کہ میں آئی کین ناٹ بریتھ, میں سانس نہیں لے سکتا, مجھے آکسیجن دے دو, اور ظالموں نے اس کو آکسیجن بھی نہیں دینا گوارا کی. جناب چیئرمین, یہ فاشزم کی غیر انسانی سلوک کی بدترین مثال ہے. یہ جو میڈیکل رپورٹ جاری ہوئی یہ خود چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ حالات کیا ہیں. یہ تسلیم کیا انہوں نے کہ جب شہباز گل ہاسپٹل میں آئے تو اس کو سیویئر اسٹمیٹک اٹیک تھا. کل یہاں پر سر بل پیش کیا ٹارچر کا اس لیے بل پیش کیا کہ یورپین یونین سے امداد لینی ہے. یہ ہے آپ کے انسانی حقوق. میں کہتا ہوں فیئر ٹرائل کریں, مگر خدا کے لیے اس ملک میں ٹارچر, غیر انسانی رویوں کے خلاف اکٹھے ہوں. تشدد کی تائید کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شہری رحمان کا شہزاد وسیم کو جواب. کہا میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی, ہمیں جو تصاویر دکھائی گئیں اس میں تشدد نہیں ہے. سینیٹر مرتضی جاوید نے کہا تشدد کا الزام بے بنیاد ہیں. ان لوگوں نے پہلے معیشت تباہ کی اور اب ایوان کا ماحول تباہ کرنے پر تلے ہیں. عدالت میں رپورٹ پیش کر دی گئی ہے, جو ہمیں تصاویر دکھائی گئی ہیں اس میں تشدد نہیں ہے جی, اور اگر تشدد ہوا ہے تو وہ انویسٹیگیٹ ضرور ہوگا. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم تشدد کی تائید کریں. ان کا احتجاج بالکل بے جا ہے جناب چیئرمین. میڈیکل رپورٹ ہے جناب چیئرمین, اس میں کوئی تشدد کی اس میں رپورٹ نہیں آئی, کسی قسم کا تشدد اس میں نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو اس نیچ پہ لے کے آئے ہیں, ایوان کے ماحول کو بھی یہ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے پاکستان کے اندر ظلم کی انتہا کی, سیاسی انتقام کی انتہا کی. 90 دن تک لوگوں کو ریمانڈ پہ رکھا جاتا تھا. ان کو وہ دن نہیں یاد جب رانا ثناء اللہ صاحب کو 14 کلو جھوٹے کیس میں کلمے اٹھا کے ان کے وزیر کہتے تھے. آج ان کی غیرت کدھر سے جاگ گئی؟ اس وقت یہ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت اپنے لیڈر کے سامنے ان کی بات کرنے کی جرات تک نہیں تھی. پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک کہتے ہیں ضمنی انتخابات میں دلچسپ مقابلہ ہوگا. کپتان 11 جماعتوں کو ڈبو دے گا. پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد ضمنی انتخابات کے بعد سیاست کا نام بھی نہیں لیں گے. انہوں نے شہباز گل پر پولیس تشدد کو بدماشی قرار دیا. کا مقابلہ ہے 11, ایک طرف عمران خان اکیلا اور اکیلا انشاءاللہ تعالی اس کو ایسا دعا کہ یاد کریں گے اور آئندہ سیاست کا نام نہیں لیں گے. جو بھی غلط بات کرتا ہے عدالت کا حق ہے جو اس کا پوچھے, سزا دے, معاف کرے, لیکن یہ تشدد کرنا, بدماشی کرنا, اس کے ہم سب خلاف ہیں کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم کوئی کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم کسی کے نوکر نہیں ہے کوئی بھی. تو تشدد کے بغیر جو سوال کرنے کریں, لیکن کسی کے ساتھ یہ بدماشی نہیں چاہیے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان ہر وقت الزام لگاتے ہیں. 22 سال الزامات کی سیاست کی. الیکشن کمیشن, اپوزیشن, میڈیا یا پارلیمنٹ پوچھے تو کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. 3 بار منتخب وزیر اعظم اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ جواب دے سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ آپ کو قانون کے مطابق جواب دینا پڑے گا. اٹھاتا رہا, جھوٹ بول کر اور دوسروں کو الزام لگا کر اور اسلامی ٹچ دے کر پوری جو سیاست ہے وہ کرنے کی کوشش کی 22 سال. کون سا بندہ آپ کو پی 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 اور مسلم لیگ نون کے بارے میں رپورٹس بھیجتا تھا اور بریفنگ دیتا تھا؟ کس نے آپ کو چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں گارنٹی دی, اور کیا گارنٹی دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا؟ آپ سے سوال پوچھو تو جواب نہیں دیتے. میں ریکارڈ نہیں دوں گا, آپ کہیں میں ثبوت نہیں دوں گا شہباز شریف کے خلاف. شہباز شریف صاحب کے خلاف آپ نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا, آپ نے نیب نہیں چھوڑی, ایف آئی اے نہیں چھوڑی, نیشنل کرائم ایجنسی میں جا کر گھٹیا ثبوت اور جھوٹے ثبوت دیے. ایک الزام کا ثبوت آپ نے پیش نہیں کیا اور کھڑے ہو کر سیمینار میں کہتے ہیں میری جھوٹی سیاست کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچاؤ. شخص کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو جس کے منصوبوں پہ تختیاں لگاتے. قانون ہے, یہ جواب دینا پڑے گا. الزامات کا تماشا بند کرنا پڑے گا.
पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस अता तारड़ और राना मशहूद की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। जी आबिद बताइए। जी बिल्कुल जी, पुलिस की जानिब से मार्शल साहब कचहरी में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें अता तारड़, राना मशहूद, सरदार अवैस लगारी, मिर्जा जावेद, सैफुल मलूक खोकर। ठीक है, आबिद हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस अता तारड़ और राना मशहूद की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है। जराए बताते हैं राना मशहूद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनकी रिहाइशगाह पहुंच गई है। पुलिस अता तारड़ और राना मशहूद के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर चुकी है। आबिद से एक बार फिर बात करेंगे। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, पुलिस की जानिब से मॉडल टाउन कचहरी में जो दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि अता तारड़, राना मशहूद, मिर्जा जावेद, अवैस लगारी समेत दीगर जो नून लीगी रहनुमा हैं उनके खिलाफ थाना किला गुजर सिंह में एक मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई के हवाले से मुल्जिमान को बार बार बुलाया गया कि वो शामिल तफ्तीश हो, मगर वो जानबूझ कर अदालत के रूबरू पे पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे, लिहाजा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अब जो है ये दरख्वास्त मंजूर कर ली है और तमाम मुल्जिमान की जिनकी पुलिस ने जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की थी उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की जो है वो इजाजत दे दी है। अब पुलिस के पास बाकायदा तौर पर वारंट गिरफ्तारी मौसूल हो चुकी है। इसके बाद जो है वो पुलिस बाकायदा तौर पर जाकर छापा मार कर इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करेगी। ताहम ये अहम तरीन खबर यही है कि राना मशहूद, अता तारड़ समेत दीगर जो अहम मुस्लिम लीगी रहनुमा है उनके खिलाफ जो है वारंट गिरफ्तारी अदालत ने इजाजत दी थी। अब पुलिस जो है इन तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सकती है। जी आबिद, बहुत शुक्रिया। उधर बलूचिस्तान में मॉनसून बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, नुकसानात बढ़ते जा रहे हैं। खुराक की किल्लत, पीने का पानी कमयाब हो गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, बेशतर इलाकों में इमदाद न पहुंच सकी। क्वेटा के इलाके में कुएं में गिरने वाले दोनों अफराद जाँ बहक हो गए। एक नौजवान दूसरे नौजवान को बचाते हुए कुएं में गिर गया था। वजीर आला बलूचिस्तान का बालाच नौशेरवानी को खिराज अकीदत। कहते हैं बालाच नौशेरवानी ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। जाफराबाद में गुज़श्ता 2 दिन से जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। डेरा अल्लाह यार में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। तहसील गंदखा में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक जबकि 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद मकानात मुनहदम होने से बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ। इस बारे में मजीद बताएंगे लियाकत मस्तूरी। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुज़श्ता 36 घंटों से जिला जाफराबाद के मुख्तलिफ शहरों डेरा अल्लाह, उस्ता मोहम्मद और गंदा खां में कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। नदी नालों में भी तुग़यानी आ गई है। बारिश का पानी जो है कई घरों में दाखिल हो चुका है। मैं मौजूद हूँ जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अल्लाह के गुंजान आबादी के मुराद कॉलोनी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बरसात का पानी यहाँ के मकीनों के घरों में दाखिल हो चुका है। मकीन जो है शदीद अजियत का शिकार है, मुश्किलात उन्हें पेश आ रही हैं और कई घरों की दीवारें गिर गई है, कच्चे मकानात जो है मनहदम हो गए हैं। ये भी बताता चलूं कि मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी सिंध में मानसून बारिश, इंतजामी अहली ने तबाही फैला दी। हैदराबाद, सांघर, टंडोआला यार, सखर में बदतरीन सूरत हाल है। मुतादिद इलाके डूब गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। कारोबारी जिंदगी मफलूज है। शिकारपुर, शहदादकोट और कंदकोट में कच्चे मकानात की छतें गिर गईं। 3 बच्चियां जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। नेशनल हाईवे M9 पर दरियाए सिंध को उबूर करने के लिए बनाए गए बाईपास पुल की हालत इंतहाई अबतर है। संगीन हादसा हो सकता है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी पुल पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों की मरम्मत करने को तैयार नहीं। नासिर हसन खान मजीद बताएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाम शोरों का पुल है और ये दरिया सिंध का ऊपर पुल है जो टूल प्लाजा से कुछ ही फासले पे है। यहाँ पुल की जो खस्ता हालत है, सरिये नजर आ रहे हैं, जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, हेवी ट्रैफिक है। आप क्या कहेंगे, कितना वजन होता है और ये आपकी गाड़ी को और जानों को कितना खतरा है? बहुत ही खतरा होता है क्योंकि पुल बहुत नाकिस बन चुके हैं, पानी की वजह से गड्ढे बन चुके हैं और बहुत ही हमारे लिए मुश्किल निजाम बन रहा है। जिस तरह से यहाँ से तकरीबन कोई जाम शोरों और सिर्फ कितनी यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें हजारों लाखों तलबा पढ़ रहे होते हैं
और उनकी जानों को खतरा है। मेडिकल कॉलेज है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स का यहाँ से गुजरना होता है। वो नेमुल बदल रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी और रास्ते से जाया जाए, हमारे पॉइंट से इधर से ना जाएं और हमारी जानों को खतरा है। जी, दरियाए सिंध में लाड़काना के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कच्चे के सैकड़ों देहात और तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। मुतासर अफराद ने महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी है। मजीद बता रहे हैं बाबू इकबाल। इस वक्त यहाँ दरियाए सिंध के लाड़काना खैरपुर ब्रिज पे मौजूद हूँ, जहाँ से 3.5 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला क्रॉस कर रहा है। सैलाबी रेले की वजह से इर्द गिर्द के जो कच्चे के गांव हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि खड़ी फसलें जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लोगों ने यहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी है। इंतजामिया की जानिब से उन्हें अभी रेस्क्यू करने का इंतजामात नहीं किया गया है और खंडर बन गई है। शहरियों के लिए सड़क पर सफर अज़ियतनाक बन चुका है। अनवर खान मजीद बता रहे हैं। इस वक्त मैं जिला बस्ती के इलाके लियाकताबाद में मौजूद हूँ। ये लियाकताबाद डाकखाने का इलाका है और ये इस शाहरा का नाम है शाहरा पाकिस्तान। और लियाकताबाद की कमोबेश तमामी शाहराओं सड़कों की यही सूरत हाल है। तो इस रोड के ऊपर लोगों का सफर करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है और इस वक्त यहाँ पर गड्ढे पड़ चुके हैं हैवी स्पेल और बारिश के बावजूद। मोटरसाइकिल सवार भी यहाँ से गुजरे, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। आप ये बताइए कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी है, आधे घंटे सफर 2 घंटे में तय हो जाए। और कितनी गाड़ी खराब होती है बार बार? बहुत खराब है, रोज ही खराब है। पंचर है, कभी क्लच टूट रहा है, कभी बेरिंग टूट रहे हैं। कभी क्लच टूटता है, कभी बेरिंग टूटती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको पता है शहर के अंदर इंतजाम बिल्कुल नहीं है। और मेरे पस मंजर के अंदर मुस्तकिल आप देखेंगे रिक्शा और चिंची रिक्शा यहाँ से गुजर रहे हैं और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो इन्हीं रिक्शों पर सफर करती है। तो ये सूरत हाल होती है। इस वक्त सफर यहाँ पर इंतहाई अज़ियतनाक बन चुका है। सड़कें मुकम्मल तौर टूट फूट का शिकार हैं और इस वक्त मानसून का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है और शहरी सहूलत फराहम करने वाले इदारे शहरियों को सहूलत फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं और मुताल्लिका बल्दियाती इदारों की जानिब से सूरत हाल का ताल नोटिस नहीं लिया गया है। तो इस वक्त अज़ियतनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कराची के शहरी टूटी फूटी सड़कों के हवाले से। जी, कराची की कदीम जूना मार्केट में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। सीवरेज की लाइनें चौक होने से गलियां दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगे ARY न्यूज़ के नुमाइंदे जो कि एक मार्केट में मौजूद हैं। कदीमी जूना मार्केट खजूर बाजार के मसाइल भी काफ़ी पुराने हैं। बारिश का मौसम हो या ना हो, यहाँ का सीवरेज निज़ाम जो है साल साल से ही धर्म बरम का शिकार रहता है। यहाँ के हम लोगों से बात करेंगे वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि वाकई यहाँ पर कोई काम होता हुआ दिखाई देता है या नहीं। मसले मसाइल ये लगे ही रहते हैं और हम अपनी मदद आप कहते हैं जितना कर सकते हैं करते हैं। बाकी आपके सामने ही सारे हैं मंजर, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, ना ही कोई पूछता है। यहाँ की लाइनें, गटर लाइनें वगैरह सब चौक हुई हुई। नुकसान तो काफ़ी हुआ है लोगों का। सबकी शॉप्स के अंदर भी पानी आया था जो हम लोग निकाल चुके हैं अब तक। ग्राहक आने वालों को बड़ी मुश्किलात होती हैं, हमारे को मुश्किलात होती हैं, हम आ नहीं सकते हैं, दुकानें बंद रखनी पड़ती हैं। पानी कीचड़ बड़ी मुश्किल से यहाँ से ख़त्म होता है। दुकानदारों से हमारी गुफ्तगू हो रही तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे सीवरेज निज़ाम जो है ख़राब होने की वजह से बारिश के पानी के साथ साथ गटर का पानी भी जमा हो जाता है। इस मुकाम पर जो है तवज्जो की ज़रूरत है क्योंकि ये एक कारोबारी इलाका है और यहाँ से बड़ी तादाद में जो है रेवेन्यू जनरेट होता है शहर कराची का। जी, मानसून बारिश से पंजाब के मुतादिद इलाके मुतासिर हैं। मुसलसल बारिश से सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। सुबह सवेरे पाकिस्तान भर में इंटरनेट और PTCL सर्विस मुतासर होने से सारिफीन परेशान हो गए। बारिश सैलाब से मुतासरा PTCL फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क की खराबी दूर कर दी गई। तर्जुमान PTCL का कहना है नेटवर्क बहाल कर दिया गया। सारिफीन को इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी बहाल कर दी गई। सुबह 7 बजे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई जिसके बाद PTCL, स्टॉर्म फाइबर समेत दीगर कंपनीज के नेटवर्क्स बैठ गए। बैंकिंग सिस्टम शदीद मुतासर हुआ। इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। फाइनेंस डिवीजन ने जमील अहमद को स्टेट बैंक का अगले 5 साल के लिए नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया। फाइनेंस डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमील अहमद 2017 से 2021 तक स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी रह चुके हैं। उनका 30 साल से जायद मुख्तलिफ अहम ओहदों पर स्टेट बैंक और सऊदी मरकजी बैंक का तजुर्बा है। जमील अहमद ने 1988 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA किया। वो 1994 से ICM में पाकिस्तान के फेलो रहे हैं। बतौर डिप्टी गवर्नर बैंक्स की डिजिटलाइजेशन करने में कलीदी किरदार अदा किया। NA 245 ज़िमनी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पाक फौज, रेंजर्स और वजारत दाखिला के हुकाम IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध से फोन पर राबते। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को
मुनासिब और ज़रूरी हिदायत दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्के के वोटर्स को मुकम्मल पुरअमन माहौल मुहैया करने की हिदायत की। कहा पाक फौज को एक रिस्पॉन्स के तौर पर काम करेगी। फौज इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर रहेगी। कानून शिकनी के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की हिदायत की। कहा इलेक्शन के अमल में मुदाखलत पर अनासिर के साथ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। NSO 245 हल्के में 21 अगस्त को ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। सूबाई वजीर सईद गनी ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए बतौर सूबाई वजीर इस्तीफा वजीर आला सिंध को भिजवा दिया है। ट्विटर पर बताया कि ताहाल उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी कराची ख्वाहिश है कारकुनों के साथ इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लूं। इस्तीफे की मंजूरी का फैसला पार्टी क़यादत और वजीर आला को करना है। ऐसी हल्का बंदियों और जाली वोटर लिस्टों पर इंतखाबात करा कर जाली बल्दियाती क़यादत मुसल्लत की गई तो बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा, जिससे निमटना आसान नहीं होगा। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। बैरिस्टर अयान मेमन कहते हैं डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अगर ARY की नशरियात बहाल नहीं होती तो 24 अगस्त को चेयरमैन पेमरा को अदालत में पेश होना होगा। अदालत ने पेमरा की जानिब से चेयरमैन पेमरा को अदालत में पेश होने से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त कबूल नहीं की। पेमरा की अपील फिक्स थी, जो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं 10 तारीख के और 12 तारीख के, उनके खिलाफ जिस पर पिछली डेट पे नोटिस जारी हुए थे, आज वो अपील लगी हुई थी और पेमरा ने आगे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2 दिन पहले भी कोर्ट ने एक और ऑर्डर पास कर दिया है और चेयरमैन पेमरा को तलब कर दिया है। तो इस पर कोर्ट को बताया गया कि जो इनकी अपील है वो तो शो कॉज नोटिस के खिलाफ है और वो जिस ऑर्डर पे चेयरमैन पेमरा को बुलाया है वो चैनल की रेस्टोरेशन का ऑर्डर है। तो कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स भी दिए उससे, और जो पेमरा की रिक्वेस्ट थी कि आप चेयरमैन को एग्जेम्प्ट करने आने से, या उनकी जो दूसरी रिक्वेस्ट थी कि आप जो है इसको सस्पेंड करें, तो कोर्ट ने वो एक्सेप्ट नहीं की और कोर्ट ने इस केस के अंदर 23 तारीख की डेट दे दी है और कोई भी डायरेक्शन पास नहीं की। डेडलाइन आज पूरी हो जाएगी। अगर इस डेडलाइन के अंदर चेयरमैन चैनल रिस्टोर नहीं होता तो चेयरमैन पेमरा को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा 24 तारीख को। और ARY न्यूज की नशरियात की बंदिश के खिलाफ इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। कराची प्रेस क्लब के बाहर आपको लिए चलेंगे, जहां पर हमारे नुमाइंदे फैजुल्लाह मौजूद हैं। फैज, बताइएगा, आज भी एहतजाज किया जा रहा है सिविल सोसाइटी सहाफती तंजीमों की जानिब से, क्या कहना है सबका? जी बिल्कुल, एहतजाज आज 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और कराची प्रेस क्लब के बाहर ARY न्यूज़ के वर्कर, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी के लोग पहुँचे हैं और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। ये एहतजाज हो रहा है अदालती अहकामात के बावजूद केबल पर ARY की बहाली न होने के ख़िलाफ़, ARY न्यूज़ की बंदिश के ख़िलाफ़, और ये एहतजाज इस वक्त भी जारी है। यहाँ पर मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अदालती अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करते हुए ARY न्यूज़ को बहाल कराएं। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, ARY न्यूज़ बहाल करो के नारे लग रहे हैं, प्ले कार्ड्स हैं, बैनर्स हैं जिसमें ARY न्यूज़ की बहाली के मुतालबात हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मुकर्रीरीन ने कहना है कि खुद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी भी इस बंदिश के खिलाफ है। अदालती अहकामात भी वाज़े तौर पर आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। ARY न्यूज़ को वो बहाल नहीं करा सकी है। मुतालबा किया गया है कि हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अदालती अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराए और ARY न्यूज़ को केबल पे बहाल कराए। एहतजाज अभी भी जारी है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं और इस एहतजाज में शरीक हैं। मुसलसल 5वां रोज़ है आज यहाँ पर एहतजाज का ये सिलसिला है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ARY न्यूज़ को बहाल कराया जाए। जी फैजुल्लाह, हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे, मुसलसल 5वां दिन है और उस वक्त एहतजाज किया जा रहा है कराची प्रेस क्लब के बाहर। कहा जा रहा है कि ARY न्यूज़ की नशरियात को बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया। ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ PFUJ की जानिब से इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। सेक्रेटरी PFUJ राना अजीम कहते हैं कि आज़ादी सहाफत की जंग सबको लड़नी है। हजारों मुलाजमीन बेरोजगार होने का खतरा है। प्लानिंग हो रही है। मैं आपको ये मुसब का इतला दे रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून PTN है, उन्होंने चैनल बंद करवाए और प्रेस के बाद कहा कि हम इस्लामाबाद धरना देने जा रहे हैं। तो मुझे कहा गया कि आप इस्लामाबाद के लिए लाहौर से निकलेंगे
तो रास्ते में आप लोगों को रोक लिया जाएगा। बाकायदा धमकियां दी गई। ये लड़ाई सिर्फ ARY की नहीं है, ये पाकिस्तान में ज़ाती सहाफ़त की लड़ाई है। और जो ARY एक बड़ा अदारा है, और अगर एक सबसे बड़ा अदारा बंद हो जाता है तो बाकी इदारों के साथ जो सलूक होगा वो ये सोच भी नहीं सकते। आज़ादी सहाफ़त खत्म होगी तो जमहूरियत भी खत्म हो जाएगी। ताकतवर जो लोग हैं वो किसी सूरत में भी किसी भी मीडिया हाउस को सच बोलने नहीं देंगे। किसी को ARY के साथ से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो 6000 4000 खानदानों से इख्तिलाफ ना करें। तो सिंध के जो हमारे सहाफ़ी हैं, PFJ से तलक रखने वाले, वो GM अली सर की जो हमारे सदर हैं उनकी क़यादत में कराची कैमरा ऑफिस के बाहर धरना देंगे। बलोचिस्तान वाले बलोचिस्तान, AP के और पंजाब के सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, हम मंगल के रोग इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं। कोई लाठी चार्ज करे, कोई गिरफ्तारियां करे, हम हर चीज का मुकाबला करेंगे। हमारे जो मंत्री सदर है GM जमाली साहब, उन्होंने बकायदा इस पर एक कैंपेन तश्कील दे दी है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक सहाफ़ती धरना होगा जिसमें हर शख्स हिस्सा लेगा। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।